السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سبوں کو پتہ ہے کہ ہم کلاس 12 کے نصاب میں جو اردو شامل ہے، جس کا نام کہکشاں ہے، کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرا چیپٹر میں مضمون ہے اور مضمون کا نام ہے مٹی کا تیل، جس کو آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی طالب علم سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ایجوکیشن فار آل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ مضمون کو دیکھتے ہیں کہ مضمون کیا ہے۔ تو مضمون کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ عام طور سے کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا مضمون کی تعریف کہ عام طور پر کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ادبی اصطلاح میں یعنی لٹریچر کی بھاشا میں مضمون کہتے ہیں۔ انگریزی میں مضمون کے لیے ایک ورڈ آتا ہے جس کا نام ہے ایسے، ایسے مضمون کا یہ انگلش ہے۔ انگریزی ہو یا اردو، اس ایک لفظ کے دائرۂ کار میں گائے پر لکھے نوشتے سے لے کر کسی عالمانہ موضوع کا احاطہ کرنے والی تحریر تک کو شامل کیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے جو مضمون ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے چیز پر بھی لکھی جاتی ہے اور کوئی عالمانہ دقیق موضوع جو علمی موضوع اس کے اوپر بھی لکھی جاتی ہے۔ مضمون کے متعدد اقسام ہیں، یعنی اس کے کئی قسمیں ہیں، اور اکثر موضوع یا انداز تحریر کی وجہ سے انہیں الگ سے پہچانا جاتا ہے۔ جو مضمون کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے کچھ قسم کو آپ دیکھ لیں۔ ایک مضمون ہے تنقیدی مضمون، انگلش میں اس کو کریٹیکل ایسے بولتے ہیں۔ جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی کوشش ہوگی، جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی کوشش ہوگی اسے تنقیدی مضمون کہا جائے گا۔ اور جس تحریر میں لکھنے والے کا نقطہ نظر علمی ہو اور تحریر کا انداز بھی عالمانہ شان کا حامل ہو اسے علمی مضمون یعنی لٹریری ایسے کہتے ہیں۔ جس مضمون میں لکھنے والا جریفانہ رخ اختیار کرے اسے جریفانہ مضمون لائٹ ایسے کہتے ہیں، اور جس تحریر کا انداز ذاتی یا نجی ہو اور بیان کی شگفتگی بھی قائم رہے اسے انشائیہ یعنی پرسنل ایسے کہا جائے گا۔ تو طلباء عزیز، یہ تھا مضمون کے متعلق کچھ اہم باتیں کہ مضمون کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے تنقیدی مضمون، دوسرا ہے علمی مضمون، تیسرا ہے جریفانہ مضمون اور چوتھا ہے انشائیہ۔ اب شامل نصاب میں جو پہلا مضمون ہے جس کا نام ہے مٹی کا تیل، اس کے مضمون نگار یعنی اس کے مصنف کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ اور مٹی کا تیل مضمون کا جو مضمون نگار ہے وہ ہے خواجہ حسن نظامی۔ تو ہم لوگ خواجہ حسن نظامی کے بارے میں
कुछ जान लेते हैं। ख्वाजा हसन निजामी सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में से हैं। किसकी औलाद में से? सैयद बदरुद्दीन इसहाक के औलाद में से हैं। और सैयद इसहाक जो है हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सकर के मुमताज़ खलीफा थे, दामाद थे और खादिम खास थे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के रूहानी तरबियत में उनका अहम हिस्सा था। ख्वाजा हसन निजामी की जो पैदाइश है दिसंबर 1878 को है। अंदरून कोट बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई। तो ख्वाजा हसन निजामी की जो पैदाइश है ये दिसंबर 1878 में अंदरून कोट बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई, जो उनका आबाई मकान था। वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली रखा, यानी माँ बाप ने ख्वाजा हसन निज़ामी का जो नाम है वो कासिम अली रखा, लेकिन इनके जो मामू हैं उन्हें इसको अली हसन कहकर पुकारते थे। अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन निजाम में लिखना शुरू किया। तो ये बात याद रखने लायक है कि ख्वाजा हसन निजामी को ख्वाजा हसन निजामी लिखना किसने शुरू किया? तो अल्लामा इकबाल ने शुरू किया। वैसे उसके वालिदैन इसको कासिम अली और मामू जो है इसको अली हसन कहकर पुकारते थे। ख्वाजा साहब के वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी, वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी था और वालदा सैयद चहती बेगम, वालदा सैयद चहती बेगम थी। ख्वाजा हसन अभी कमसिन थे कि उनके वालिदीन का इंतकाल हो गया। उनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने उनकी कफ़ालत की। किसने कफ़ालत की? बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने कफ़ालत की। ख्वाजा हसन निजामी ने मुख्तलिफ असातिज़ा से कुरान व हदीस की तालीम हासिल की। 18 बरस की उम्र में अपने चाचा की लड़की सैयदा हबीबा बानो से निकाह किया। पहली बीवी के वसाल के बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह किया। तो ख्वाजा हसन निजामी की 2 शादियां हैं। पहली जो शादी है सैयदा हबीबा बानो के साथ और दूसरी शादी जो है वो सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो के साथ है। ख्वाजा साहब के इब्तदाई ज़िंदगी बड़े परेशानियों में बसर हुई। उन्होंने हल्का निज़ामुल मशाइख और रिसाला निज़ामुल मसाइख की बुनियाद डाली। ख्वाजा हसन निजामी ने हल्का निज़ामुल मशाइख और रिसाला निज़ामुल मसाइख की बुनियाद डाली। अपने अहबाब के साथ मिलकर दरगाहों और खानकाहों की इस्लाह का बेड़ा उठाया। इसी सिलसिले में उन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई और मुखालिफत बर्दाश्त की। उन्होंने मुख्तलिफ़ हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की और हिंदू साधुओं से फ़लसफ़ा वेदांत सीखा, फ़लसफ़े वेदांत को भी सीखा। ख्वाजा हसन निजामी ने 200 से जायद किताबें लिखी। कितनी किताबें? 200 से जायद। हर जगह ज़बान नहायत सादा इस्तेमाल की। सहाफ़ी की हैसियत से भी उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। रोज़ नामचे और कलमी चेहरे, रोज़ नामचे और कलमी चेहरे तो एक तरह से उनकी ऐजाद है, यानी सहाफ़ी के हैसियत से भी नाम पैदा किया और रोज़ नामचे और कलमी चेहरे तो एक तरह से उनकी ऐजाद है। 1857 से मुतालिक उनकी किताबें पढ़िए तो दिल तड़प उठता है। उन्होंने श्री कृष्ण पर भी जखीम किताबें लिखी, श्री कृष्ण पर भी किताब लिखी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानह निजामी बनसरी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो सवानह है नाम है निजाम बनसरी के नाम से तरतीब दी। सी पाराह दिल उनकी इंशा पर्दाजी का अहम नमूना है। 31 जुलाई
1955 को ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल हो गया और उसको दफन किया गया हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो बस्ती है निजामुद्दीन औलिया है, उसमें 50 बरस कब्र ही तैयार की थी और उस पर यानी उन्होंने अपनी कब्र बस्ती निजामुद्दीन औलिया में 50 बरस कब्र ही तैयार करा ली थी, वहीं पर उसको दफन किया गया। तो ये था मजमून निगार का तारुफ। एक बार आप सुन ले मुख्तसर तौर पर कि ख्वाजा हसन निजामी जो है ये सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में से हैं, जो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सकर के खलीफे थे। ख्वाजा हसन निजामी की जो पैदाइश है दिसंबर 1878 को अंदरून कोट बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई और अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले उन्हें ख्वाजा हसन निजामी लिखना शुरू किया और इसी नाम से वो मशहूर भी हुए। ख्वाजा हसन निजामी की 2 शादियाँ, पहले बीवी का नाम सैयदा हबीबा बानो और दूसरी का नाम सैयदा महमूद ख्वाजा बानो है। ख्वाजा हसन निजामी हल्के निजामुल मशाइख और रिसाला निजामुल मसाइख की बुनियाद डाली ताकि दरगाहों और खानखाहों की इस्लाह की जा सके। मुख्तलिफ हिंदू तीर्थ स्थानों का भी यात्रा किया और हिंदू साधुओं से फ़लसफ़े वेदांत सीखा। ख्वाजा हसन निजामी 200 से जायद किताबें लिखी। रोज़नामचे और कलमी चेहरे तो ख्वाजा हसन निजामी की ईजाद है। 1857 के मुतालिक ख्वाजा हसन निजामी की जो किताबें हैं वो पढ़ें तो दिल तरफ उठता है। श्री कृष्ण पर भी उसने जखीम किताबें लिखी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानें जो है निजामी बंसरी के नाम से ख्वाजा हसन निजामी ने ही तरतीब दी। सी पहराए दिल ख्वाजा हसन निजामी की इंशा पर्दाजी का अहम नमूना है। 31 जुलाई 1955 को ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल हो गया। ख्वाजा हसन निजामी ने अपनी कब्र बस्ती निजामुद्दीन औलिया में 50 बरस कब्र ही तैयार करा ली थी, वहीं उसको दफन किया गया। तो ये था मजमून निगार का तारुफ। अब आइए मजमून की तरफ। मजमून का खुलासा यानी मिट्टी का तेल जो मजमून है उसका क्या खुलासा है। खुलासा ये है कि मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निजामी का मशहूर मजमून है, जिसमें मिट्टी के तेल को मौजू बनाया गया है। मिट्टी के तेल को भले ही हकीर और बेवक़्त समझा जाए, लेकिन उसके दम से आदमी रोशनी पाता है। मिट्टी के तेल की खूबी और अफादियत इस कदर है कि चंबेली और मोतियाँ के तेल की खुशबू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मजमून निगार ने मिट्टी के तेल की अहमियत साबित करने के लिए कई ज़ेली और ज़मनी वाक़ियात बयान किए। वो ये बताना चाहता है कि भले ही आज बिजली आ गई है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग इसी तेल के सहारे अपनी रातों में उजाले भरते हैं और सारे काम करते हैं। मजमून के आखिर में ख्वाजा हसन निजामी ने मकालमाती अंदाज़ अपनाया है और मिट्टी के तेल को मुखातिब करते हुए कहा है कि हमको तुम्हारी सारी अदाएं भाती है। इंसान बरसों टकरे मारता है, पहाड़ों दरियाओं में भटकता है, फिर भी तुम्हारी तरह रोशनी पैदा नहीं कर सकता। मजमून ख़त्म करते हुए ख्वाजा हसन निजामी नसीहत आमेज रवैया अपनाते हैं। यह ख्वाजा साहब का ख़ास अंदाज है। वो चलते चलाते तबलीग और इस्लाह का कोई ना कोई पहलू तलाश कर लेते हैं। तो ये है मजमून का खुलासा। अब आइए मिट्टी का तेल जो मजमून है इसमें जो मारूजी सवालात हैं हम उसको देख लेते हैं। पहला सवाल है ख्वाजा हसन निजामी की सन पैदाइश क्या है। जैसे कि आपको हम बताए हैं कि ख्वाजा हसन निजामी 1878 को पैदा हुए।
वालिदैन ने ख्वाजा हसन निजामी का नाम क्या रखा? वालिदैन ने ख्वाजा साहब का नाम कासिम अली रखा। क्या रखा? कासिम अली। अगला सवाल है, उन्हें ख्वाजा हसन निजामी लिखना किसने शुरू किया? तो अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा हसन निजामी लिखना शुरू किया। अगला देखिए, ख्वाजा हसन निजामी की कितनी शादियाँ? तो ख्वाजा हसन निजामी की 2 शादियाँ। आगे अब देखिए अगला सवाल, ख्वाजा हसन निजामी की किताब का नाम बताइए। तो ख्वाजा हसन निजामी की जो किताब है सी पाराए दिल, उनकी एक किताब है। ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से मुख्तसर मारूजी सवालात ख़त्म होता है। अब इसके बाद मुख्तसर तरीन सवालात हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल, आग, हवा, पानी और खाक में से सबसे कमतर किसको समझा गया है? तो सबसे कमतर मिट्टी यानी खाक को समझा गया है। सवाल है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? जवाब है, हर मखलूक उसे पाँव से रौंदती है। हर मखलूक उसे पाँव से रौंदती है। सवाल है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे? जवाब, क्योंकि उसके दम से दुनिया में उजाला है। सवाल है, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक मुंह चिढ़ाते हैं? जवाब, उसकी बू यानी महक की वजह से लोग नाक मुंह चिढ़ाते हैं। सवाल है, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? जवाब, अफादियत और ज़रूरत के लिहाज से बढ़ चढ़ कर है। सवाल है, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक़ है, कैसे? जवाब, अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से बेगर्ज और बेताल्लुक़ है। मुख्तसर तीन सवालात के बाद कुछ मुख्तसर सवालात हैं, आइए तलबा अजीज उसे भी देख लेते हैं। सवाल है, मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? तो इसका जवाब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में 4 बुनियादी अनासिर पैदा किए। 4 बुनियादी अनासिर पैदा किए, आग, हवा, पानी और मिट्टी। उन चारों में सबसे ज़्यादा हकीर और कमतर मिट्टी ही समझी जाती है, जो तमाम मखलूक़ात के पाँव से रौंद दी जाती है। मौजे आब उसे बहा ले जाती है, हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है, आग की तमाज़त और गर्मी के साथ जलती और तपती है, मगर फिर भी उफ़ नहीं करती। मिट्टी के इस बेचारगी और जिल्लत पर मजमून निगार को तरस आता है। अगला सवाल है, मिट्टी के तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखे हैं? तो मिट्टी के तह में, जवाब है, मिट्टी के तह में कुदरत ने बेशुमार खजाने छुपा रखे हैं। ये खजाने मादनियात की शक्ल में ज़मीन के तह में पैदा होते हैं। सोना, चांदी, अबरक, हीरे, मोती वगैरह मादनियात मिट्टी के तह ही में होते हैं। अगर यह मादनियात ना होते तो हम महजब इंसान नहीं बल्कि जानवरों से ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाते। मिट्टी के बाज़ टुकड़ों के तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है, जिसे हम लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। ये दूसरे तमाम कुदरती खजानों से ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। अगला सवाल है, मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम है, कैसे? जवाब है, मिट्टी का तेल अवाम के सभी तबके की मदद और रहनुमाई करता है। गरीब व नादार तलबा को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है, बूढ़ों को ठोकरें खाने से बचाता है और चोर को पकड़ाने में पुलिस की मदद करती है और चोर को चोरी करने में मदद पहुंचाती है। जुदाई की रात में आशिकों का मुंश व गम खार मिट्टी का तेल ही है। यह अपने वजूद को
جلا کر انسان کا شریک غم ہوتا ہے اور اس کے لیے باعث تسلی ہوتا ہے، اسی طرح مٹی کا تیل انسان کا شریک غم ہوتا ہے۔ آخری سوال ہے، آپ دیکھ لیجئے، راک فیلر کون تھا اور دولت مند کیسے بنا؟ جواب ہے راک فیلر ایک امریکی تاجر تھا۔ وہ مٹی کے تیل کا تاجر تھا۔ اس نے ابتدا میں بہت کم پونجی سے مٹی کے تیل کی تجارت شروع کی۔ رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے بہت دولت کمائی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دنیا کے چند بڑے سرمایہ داروں میں شمار کیا جانے لگا۔ اب اسی مضمون سے متعلق کچھ قواعد ہیں، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سوال ہے، جد بنائیے۔ پہلا ہے بیکار۔ بیکار کا جد کیا ہوگا؟ کارآمد۔ دوسرا ہے جلت، اس کا جد ہوگا عزت۔ بدبو، اس کا جد ہے خوشبو۔ خوبصورت، بدصورت۔ مالک، اس کا جد ہے نوکر۔ روشنی کا جد ہے تاریکی۔ اب کچھ لفظ دیے گئے ہیں جس کو جملے میں استعمال کرنا ہے تاکہ جنس ظاہر ہو سکے۔ پہلا ہے لفظ خوشبو، تو خوشبو مؤنث ہے، اس لیے اس کا جملہ ہوگا عطر کی خوشبو اچھی ہے۔ شراب، شراب بھی مؤنث ہے، جملہ اس کا شراب پرانی ہو تو زیادہ نشہ ہوتا ہے۔ تیل، تیل مذکر ہے، اس لیے مٹی کا تیل بدبودار ہوتا ہے۔ اگلا ہے خاک، جو مؤنث ہے، وطن کی خاک کا ہر ذرہ پیارا ہے۔ مخلوق مؤنث ہے، خدا کی مخلوق کو چاہیے کہ اچھا کام کرے۔ اثر، یہ مذکر ہے، دعا کا اثر دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ تو طلبہ عزیز، اس چیپٹر میں اتنا ہی۔ السلام علیکم۔